Sir, you are not audible. Sir, you are not audible. So you're not audible. Sir, you are not audible. Can you hear me now? अब सुन रहा है? Yes, Yes, sir. 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 Okay, Yes, fine. sir. So you can rate types of motion and second way जो हमने कल लिखा था motion in 1D, 2D and 3D उसकी definition लिख लेते हैं and then we will do the new topics. So you can rate types of motion. First is one-dimensional motion. One-dimensional motion. You can read in one-dimensional motion of the body. In one-dimensional motion of the body, the body moves in a straight line. The body moves in a straight line or only one coordinate of the body changes with respect to time. Repeat the definition. Body moves in a straight line or only one coordinate of body changes with respect to time. Or only one coordinate of the body changes with respect to time. Only one coordinate of the body changes with respect to time. For example, a box sliding on a straight line path. Box sliding on a straight line path on any plane surface. Box sliding on a straight line path on any plane surface. On any plane surface. Second, motion in 2D. Motion in two dimensions. Motion of a body in a plane. Motion of a body in a plane. Or if two coordinates of the body. Motion of body in a plane or if two coordinates of the body changes with respect to time. Two coordinates of the body changes with respect to time. For example, motion Or of motion. two coordinates of the body changes with respect to time. For example, motion of carom coins. For example, motion of carom coins. Next is motion in 3D. Motion in 3D. If three coordinates of the body
changes relative to time. If 3 coordinates of the body changes relative to time, if 3 coordinates of the body changes relative to time, then its motion is said to be three-dimensional motion. Then its motion is said to be three-dimensional motion. For example, kite flying in the sky. For example, kite flying in the sky, or ball bouncing on the floor, or ball bouncing on the floor. Excuse me, sir. हाँ जी. सर आप एग्जांपल ऑफ 2D मोशन से रिपीट कर दोगे? आई गॉट डिस्कनेक्ट. Motion in 3D होता है that if 3 coordinates of the body changes relative to time, motion in 3D. If 3 coordinates of the body changes relative to time, for example, kite flying in the sky, or ball bouncing on the floor. ये सब हमने कल कर लिया था, सिर्फ आज लिखा है. नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक शुरू होते हैं, 5 क्वांटिटीज पहले उनको एक्सप्लेन कर लेंगे, सबकी डेफिनेशंस जो भी हमें टर्म्स चाहिए. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. डिस्टेंस इज Actual path covered by a body. एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. स्केलर है, वेक्टर है. Scalar. Sir, scalar. स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी टाइम के साथ डिक्रीज हो सकता है या इंक्रीज होता है या कांस्टेंट रहता है. Increase. या constant Increase. रहता है. अगर बॉडी रेस्ट पे है तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कांस्टेंट रहेगा. बॉडी ट्रैवल कर रही है तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बढ़ेगा, पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी टाइम के साथ कभी कम नहीं होता. मतलब जैसे ओडोमीटर है, ओडोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, जो आपके स्पीडोमीटर के अंदर एक और मीटर लगा है. सो दैट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. अगर आपका व्हीकल खड़ा है तो ओडोमीटर की रीडिंग कांस्टेंट है, वो फिक्स्ड है, बट चलेगा तो वो बढ़ेगी, वो कभी कम नहीं होगी. So we say distance traveled always either increases or it can remain constant if the body is at rest. Distance between 2 points, unique value है या non-unique value है. अगर आपने A से B जाना है, there can be any number of distance traveled depending on the path followed. कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, distance is not a unique function. Because आप कौन सा पाथ लेते हो उसके अकॉर्डिंगली डिस्टेंस वेरी कर सकता है. डिस्टेंस स्केलर है तो ये नेगेटिव हो सकता है. No, sir. No, sir. No, sir. The distance traveled is always positive. टाइम भी स्केलर है, टाइम को तो हम नेगेटिव लेते हैं. नेगेटिव टाइम का मतलब क्या होता है? हम टाइम को नेगेटिव लेते हैं. t is equal to -2 seconds. मतलब जैसे मान लो हमारी क्लास अभी 6 बजे शुरू हुई, तो अगर कोई इवेंट 5 बजे हुआ था तो मैं उसको बोलूंगा t is equal to -1 hour. मतलब जब से हमने टाइम नोट करना शुरू किया उससे 1 घंटा पहले हुआ था. तो नेगेटिव टाइम का मतलब होता है पास्ट टेंस, कि अगर हम पास्ट के इवेंट्स की बात करेंगे तो दैट इज नेगेटिव टाइम, और फ्यूचर के इवेंट्स की बात करेंगे तो पॉजिटिव टाइम. प्रेजेंट इज t इज इक्वल टू 0. सो टाइम को नेगेटिव लेते हैं, अदरवाइज स्केलर क्वांटिटीज जनरली पॉजिटिव ही होती हैं. सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमेशा पॉजिटिव है. यूनिट क्या होगा SI में? Sir, meter. मीटर, CGS में सेंटीमीटर. ये सब आपने 9th में भी पढ़ा है, सेम दोबारा लिखना है हमने. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज Shortest shortest path from initial to final point. स्केलर है, वेक्टर है? Vector. वेक्टर है. डायरेक्शन हमेशा कौन सी होगी? Direction of डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट. मतलब A से B अगर आपको जाना है, so you can go through any path. डिस्टेंस ट्रैवल तो कोई भी हो सकता है A से B जाने का, पर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो एक ही होगा सिर्फ. So we say displacement is a unique function for 2 points, कि अगर आपको इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पता है तो डिस्प्लेसमेंट की एक ही वैल्यू हो सकती है. डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज विद टाइम.
Yes, हो sir. सकता Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज आप घर से स्कूल गए तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही थी, स्कूल से वापस घर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट फिर से 0 हो गई. So displacement can increase as well as decrease with time, and it's a unique function. Unique function मतलब 2 points के लिए fixed value है. Displacement over distance की ratio किसके equal होगी? It's always Sir, less than or equal to unity. less than or equal to 1. Because displacement यहाँ तो distance से कम हो सकता है या equal हो सकता है. Equal किस case में हो सकता है? Sir, जब distance क्या कहते हैं shorter In a straight line. Straight line. The Being in a straight line straight motion. It's in a straight line without changing its direction. तो फिर distance और displacement same आ जाएंगे. Units इसके भी same मीटर और सेंटीमीटर. Device for measuring the displacement जैसे distance के लिए odometer है, displacement के लिए there is no such device. आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट मेजर करने यू कैन यूज एनी डिवाइस, मतलब जो नॉर्मल डिस्टेंस मेजरमेंट की होती है, बस ऐसा कोई मीटर नहीं है जैसे ओडोमीटर है. सो देयर इज नो सच मीटर टू मेजर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. स्पीड क्या होता है? distance traveled per unit. Distance traveled per unit time. डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम स्पीड होता है या एवरेज स्पीड होता है? Sir, average. Average speed. Average. एवरेज स्पीड. So अगर आप ले रहे हो कि बॉडी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गई है, ऐसे अगर हम ले से बॉडी एक्स एक्सिस पे ट्रैवल कर रही है एंड इट मूव्स फ्रॉम x is equals to x1 to x is equals to x2, तो इसकी जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा डेल्टा x, that will be x2 minus x1. t1 पे यहाँ थी, t2 पे इधर पहुंच गई. तो टाइम कितना लगा? It's t2 minus t1. We can say the average speed is it's delta x by delta t. इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी? अगर मेरे को एक जगह पे बतानी At है यहाँ particular point. at particular point और at particular time, उसको हम लिख देते हैं ऐसे dx by dt. कि अगर डेल्टा x और डेल्टा t को स्मॉल ले लेंगे तो इसे dx by dt इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, या फिर कैलकुलस मेथड से ड्राइव होती है. और यूनिफॉर्म स्पीड And an object covers equal equal distances in equal intervals of time, however small the time interval may be. मतलब for every second the distance traveled should be same, for every 0.1 second distance traveled should be same, then we say that it's a uniform speed. So पहले ये 3 definitions लिख लें, फिर velocity की लिखते हैं. You can write distance first. Distance ये अभी शुरू में रिपीट ही आएगा. इनफैक्ट अगर आप ये मोशन इन 1D पढ़ोगे ना, मैं कैलकुलस मेथड से वो 3 फॉर्मूला ड्राइव कराऊंगा जो हमने नॉर्मल 9th में पढ़े थे. v is equal to u plus at, s is equal to ut plus rvd square. तो यू विल ऑब्जर्व पूरे चैप्टर में एक रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है जो नया आएगा. अदरवाइज मैं डील तो 9th वाले फॉर्मूला से करूंगा, बट जो लेवल ऑफ न्यूमेरिकल्स है वो थोड़ा सा हम स्टेप अप कर देंगे डिपेंडिंग आप कितने न्यूमेरिकल्स कर पाते हो. मेरे पास 5 लेवल की असाइनमेंट होती है, तो 3 तो पक्का करनी है, बट अगर आप 3 अच्छे से कर लोगे तो नॉन मेडिकल वालों को 4th और 5th लेवल भी करना पड़ेगा, मेडिकल वालों को उसकी जगह एमसीक्यूज की असाइनमेंट करनी पड़ेगी. सो यू कैन राइट, और फॉर्मूला में नया कोई नहीं लिखूंगा, वही सारे 9th वाले फॉर्मूले, 9th वाले कंसेप्ट, सिर्फ उनको यूज करने के मेथड बदल जाएंगे हमारे. डिस्टेंस, इट इज द एक्चुअल पाथ. Distance, it is the actual path traveled by the body. It is the actual path traveled by the body as it moves between 2 points. As it moves between 2 points. अब इसके आगे ना पॉइंट्स में लिख लो इसको, चाहे तो स्टार डाल के लिखते जाओ, पॉइंट्स से नंबरिंग कर लो, जैसे भी लिखना चाहते हो. सर एक बार डेफिनेशन रिपीट कर दो. It is the actual path traveled by the body as it moves between 2 points.
So first you write distance traveled by the body is a scalar quantity. Distance traveled by the body is a scalar quantity and is always positive. And is always positive for a moving body. Because rest पे है फिर तो distance traveled 0 ही होगा. And is always positive for a moving body. Second, distance traveled by the body increases with time. Distance traveled by the body increases with time. If the body is moving, distance traveled by the body increases with time if the body is moving. And it remains constant if body is at rest. And it remains constant if body is at rest. But distance traveled never decreases. But distance traveled never decreases with increase in time. Distance traveled never decreases with increase in time. Distance traveled never decreases with increase in time. Next. Distance between 2 points will not have a unique value. Distance between 2 points will not have a unique value as distance between 2 points will not have a unique value as distance traveled depends on path followed by the body. Distance traveled depends on path followed by the body. So can you please repeat this point? Distance traveled between 2 points will not have a unique value because it depends on path followed by the body. Distance traveled between 2 points will not have a unique value as it depends on path followed by the body. Next. It is measured by a device called odometer. It is measured by a device called odometer. It is measured by a device called odometer. Last Excuse me, point sir? is Anji. सर जो ओडोमीटर होता है वो नंबर ऑफ रोटेशंस ऑफ व्हील देखता है. नंबर ऑफ रोटेशंस मतलब एक वायर होती है जो टायर के रिम को टच कर रही होती है. By measuring the number of rotations of the tire, it measures the distance traveled. तो अगर आप वो वायर को डिस्कनेक्ट कर दोगे तो it will not measure the reading. So it's based on that principle only. Because इस पे क्वेश्चन भी आया था. नॉर्मल एक होता है कि टायर आपके व्हीकल में लगाए जो मैन्युफैक्चरर ने लगाया. You customize the vehicle and you use a tire of larger radius. अपने रिम रेडियस बढ़ा लिया तो उससे ओडोमीटर जो है वो एक्चुअल रीडिंग बताएगा एक्चुअल से कम या एक्चुअल से ज्यादा. मतलब अगर आपने रिम रेडियस बढ़ाया है कम बताएगा सर. कम बताएगा. Actual से कम कम रोटेशंस होंगी सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए. तो उसी की रोटेशंस को मेजर कर रहा होता है कि एक रोटेशन में 2 पाई आर किया तो कितनी रोटेशंस हुई. रेडियस उसमें फीड किया होता है तो उस रेडियस के अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट कर रहा होता है. सो इफ यू चेंज द रेडियस इट विल चेंज द रीडिंग आल्सो. नेक्स्ट इज
The units of measurement are meter in SI and centimeter in CGS. Units of measurement are meter in SI and centimeters in CGS. Next, displacement. Displacement. It is the shortest path from initial to final point. Shortest path from initial to final point of the body. It is the shortest path from initial to final point of the body and is always independent of path followed by the body and is always independent of path followed by the body. इसके भी अब नीचे पॉइंट्स लिख लो. Displacement is a vector quantity. Displacement is a vector quantity and its direction is always from initial to final point. And its direction is always from initial to final point of the body. Displacement, next point, displacement can increase as well as decrease with time. Displacement can increase as well as decrease with time. Displacement can increase as well as decrease with time. For a moving body, and is constant for body at rest. And is constant for the body at rest. Displacement can increase as well as decrease with time and is constant for the body at rest. Next. Displacement can be positive as well as negative. Displacement can be positive as well as negative. And the negative sign only signifies the direction of displacement. Negative sign only signifies direction of displacement. इसका मतलब है कि आपने जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम किया अगर उसके ऑपोजिट होगी तो उसको नेगेटिव ले लेंगे. सो इट्स ओनली सिग्निफाइज द डायरेक्शन. Negative sign only signifies the direction of displacement. Sir, direction of displacement. हमने पॉइंट लिख लिया. इट हैज यूनिक वैल्यू. यहाँ भी नहीं लिखा. ऊपर जो पॉइंट्स लिखे हैं 3. नहीं लिखा Sir, सर. नहीं. Displacement between 2 points has a unique value. Displacement between 2 points has a unique value. Displacement between 2 points has a unique value. Independent of path followed or time taken. Displacement between 2 points has a unique value independent of path followed or the time taken.
displacement between 2 points has a unique value independent of path followed or the time taken. Next, ratio of displacement to distance. Ratio of displacement to distance is always less than or equal to 1. मॉड लगा दिया मतलब मेरे को मैग्नीट्यूड देखना है, सिर्फ साइन नहीं देखना. Next, units of measurement are meter in SI and centimeter in CGS. Meter in SI and centimeter in CGS. Next is speed. Speed. Can write speed. The rate of change, the rate at which distance is traveled by the body. The rate at which distance is traveled by the body with respect to time. Rate at which distance is traveled by the body with respect to time is called speed. It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. And can be positive or zero. It is a scalar quantity and can be positive or zero. It is a scalar quantity and can be positive or zero. Measured using a device called, it is measured using a device called speedometer. It is measured using a device called speedometer. In units are meter per second in SI and centimeter per second in CGS. अब इसी में सब हेडिंग डाल लो, एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इसी में ही सब हेडिंग. Average speed. It is the ratio of total distance traveled by the body to the total time in which that distance is traveled. Sir, can you please repeat? It is the ratio of total distance traveled by the body to the total time in which that distance is traveled. For example, as shown in figure, ये डायग्राम बना लो साथ में.
can write, for example, as shown in figure. If body moves along x-axis, from P1 to P2, then x coordinate of the body changes from, if body moves along x-axis from P1 to P2, then x coordinate of the body changes from x1 to x2. Total distance traveled, we call it delta x. It's x2 minus x1. Average speed is so either you can write x2 minus x1, or you write delta x by delta t. Next is instantaneous speed. सर ये भी इसी में सब पॉइंट बनाना है. हाँ, इसी में हमें न्यूमेरिकल्स में मोस्ट ऑफ द टाइम इसके साथ डील करना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड के साथ. वी आर नॉट जनरली बॉदर्ड अबाउट एवरेज स्पीड. Instantaneous speed of the body at any particular instant, or at any particular point in the path. Speed of the body at any particular instant or at any particular point in the path. Mathematically, if time interval delta t tends to 0, इसका मतलब क्या होता है? डेल्टा t tends to 0. हमने जब एवरेज स्पीड लिखा था तो हमने इस पूरे टाइम इंटरवल में स्पीड निकाली थी. इस पॉइंट से इधर जाने में डेल्टा टी लगा, इस पॉइंट पे बतानी है, तो मतलब डेल्टा टी लार्ज होना चाहिए या स्मॉल? अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बतानी है तो उसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिख देते हैं. इसका मतलब ये होता है कि डेल्टा टी 0 नहीं है, इट्स टेंडिंग टू 0, ऑलमोस्ट 0. कि अगर हम बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में देखें डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है, तो फिर जो डिस्टेंस अपॉन टाइम की रेशियो आएगी, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो इफ टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंड्स टू 0, then instantaneous speed is written as इसका मैथमेटिकली मतलब क्या हुआ? dx is the small distance traveled in small time dt.
मतलब फिजिकल अगर इसका लिखना है कि इसका मतलब क्या, कैलकुलस मेथड तो हो गया, दैट्स मैथ्स. फिजिकली इट मींस जब भी टाइम में यहाँ डिस्टेंस वेरी स्मॉल ले लेंगे तो वी राइट इट एज dx by dt. नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड. अगर बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म है तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज स्पीड में कोई रिलेशन बनेगा? सर वो सेम ही होगी. इक्वल होंगे. तो सेम आएंगे, बिकॉज अगर बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म है मतलब ना तो कभी बढ़ी ना कम हुई, तो जो एवरेज वैल्यू है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड भी हो जाएगी. So you can read uniform speed. A body is said to be. A body is said to be moving with uniform speed if it covers equal distances in equal intervals of time. So If can it you please कवर्स के repeat? बाद A body is said to be moving with uniform speed if it covers equal distances in equal intervals of time, however small those time intervals may be. However small those time intervals may be. However small those time intervals may be. When body is moving with uniform speed, when body is moving with uniform speed, its average and instantaneous values. When body is moving with uniform speed, its average and instantaneous values are always equal. When body is moving with uniform speed, its average and instantaneous values are always equal. Acceleration कितनी हो जाएगी? 0 और नॉन जीरो? 0. 0. और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही हुई तो? सर वो डिपेंड करता है डायरेक्शन चेंज हो रही कि नहीं. तो मैंने तो नहीं बताया था ना, तो आपने 0 कैसे बोला? आपको पूछना चाहिए था कि मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा. सो इट कैन बी 0 और नॉन जीरो, because uniform speed does not mean uniform velocity also. कि बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रही है, इट्स ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, बट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंटरवल्स. सो यूनिफॉर्म स्पीड अगर है तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होती. हम आगे जाके पढ़ेंगे एक्सेलरेशन 2 तरह की होती है, टेंजेंशियल एंड रेडियल. तो सिर्फ टेंजेंशियल वाली 0 होगी. सो यू कांट से कि एक्सेलरेशन 0 है अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो. राइट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट. पहले 2 आसान, फिर थर्ड थोड़ा सा ट्रिकी. राइट फर्स्ट न्यूमेरिकल. A body covers half the distance. A body covers half the distance between 2 points with speed v1 and other half with speed v2. And other half with speed v2. Body covers half the distance with speed v1 and other half with speed v2 as it moves in straight line. Find the average speed. सर ये Fine. लास्ट लाइन रिपीट करना.
half the distance with speed v1, other half with speed v2 as it moves in a straight line. Find the average speed. A से B तक आधा डिस्टेंस v1 से कवर किया, आधा डिस्टेंस v2 से किया, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? उसको लिख लो, होमवर्क के लिए भी लिख लो जिन्होंने नहीं किया. A body travels 1/3 distance with speed v1, next 1/3 with v2, and last 1/3 with. A body travels first 1/3 distance with speed v1, next 1/3 with speed v2, and last 1/3 with speed v3. Find the average speed. Find the average speed. So इसको करके देख लेना. Next to right. ये होमवर्क हो गया एक क्वेश्चन तो. सर हाँ जी. सर v2 की वैल्यू कितनी थी? v2 की हमने v2 अपने की कहा था ना वैल्यू 1/3 डिस्टेंस विद फर्स्ट v1. 1/3 with v1, next 1/3 with v2, last 1/3 with v3. मैंने वैल्यू कहाँ बताई v1 v2 v3 की? यस सर. Next to right. A body travels first half time with speed v1. A body travels first half time with speed v1, next half time with speed v2. Find average speed. First half time with speed v1, next half time with speed v2. Find the average speed. अब ऐसे दिया, बॉडी ए से बी जा रही है. ए से बी जाने में टाइम लगा t. For half of the time, इस पॉइंट से यहां तक जाने में टाइम लगा t/2 और P से B जाने में भी टाइम लगा t/2. तो हमने बताना है एवरेज स्पीड. इधर स्पीड है v is equals to v1, इधर v is equals to v2. इधर डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम, बिकॉज एक्सेलरेशन नहीं दी हमें कोई. v1 plus v2 upon 2. Average speed will be s1 plus s2 by t. So it comes out to be सिमिलरली टाइम को 3 इंटरवल्स में किया होता तो v1 plus v2 plus v3 by 3. सो ये तो सिंपल अर्थमेटिक मीन है. अगर आप टाइम को डिवाइड करोगे, एवरेज स्पीड इज अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्पीड्स इन इंटरवल्स. अच्छा, एक ऐसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, लॉजिकल. अ फ्रॉग, सुन लेना ध्यान से. अ फ्रॉग इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 meters from the wall. He jumps towards the wall, and in every jump, he covers half of the remaining distance. Find average speed of the frog to reach the wall. Frog दिया है 2 meter के distance पे. He covers half of the remaining distance in every jump.
Find average speed of the frog to reach the wall. सर ऐसे तो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। तो क्या लिखें एवरेज स्पीड? 0, बिकॉज उसको इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा दीवार तक पहुंचने में, बिकॉज उसने कभी पूरी जंप करनी ही नहीं। जो डिस्टेंस बचा उसका आधा ही जंप करना है। तो इसका मतलब द एवरेज स्पीड विल कम आउट टू बी 0 बिकॉज ही विल नेवर रीच द वॉल। उसने वो डिनोमिनेटर में तो t इंफिनिटी आ गया, so he will never reach the wall, so t is infinity. T infinity, the average speed comes out to be 0. Next लिखो, body travels, लिख लो इस क्वेश्चन को। body travels, थोड़ा उधर हूँ ना, जरा वो बोर्ड नहीं दिख रहा। a body travels with speed v1 for first half of the distance a body travels with speed v1 for first half of the distance the remaining distance is covered. The remaining distance is covered with speed v2. The remaining distance is covered with speed v2 for first half time, for first half of the remaining time, Is covered and with speed. the remaining distance is covered with speed v2 for first half of the remaining time and with speed v3 for next half of the time. Find the average speed. Find the average speed. मैंने क्वेश्चन में क्या दिया? Speed v3. For next half of the time. हमें ऐसे A से B तक जाना है। ये डिस्टेंस है S। हमें दिया हाफ ऑफ द डिस्टेंस से, मान लो इसको सेंटर ले लेते हैं। हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड विद स्पीड v1। फिर उसके बाद बोला अगर C से B जाने में टाइम t लगता है तो आधे टाइम के लिए स्पीड है v2 और बाकी आधे टाइम के लिए स्पीड है v3। मतलब अगर C से B जाने में टोटल टाइम t लग रहा है तो t/2 के लिए स्पीड है v2, अगले t/2 के लिए v3। तो इस पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी है? क्वेश्चन पहले देखो, समझ में आया सबको क्या पूछा है? आधा डिस्टेंस तो v1 से किया, जैसे 2 किलोमीटर जाना है तो 1 किलोमीटर तो हमने v1 से कवर किया। जो बाकी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था वो आधा टाइम v2 से, आधा टाइम v3 से। सर आंसर इसका 4v1 into v2 into v3 divided by 2v2 into v3 plus v1 into v3 plus v1 into आपको लगता है मेरे को ये समझ में आ गया होगा जो आपने आंसर डिक्टेट किया? एनीवेज गलत है, दोबारा करो। So we have to find the average speed. एवरेज स्पीड। अब कल से फिजिक्स शुरू होगी, अब जल्दबाजी नहीं, बिकॉज अभी आप सीख रहे हो, धीरे धीरे करो, स्पीड बढ़ जाएगी अपने आप। बिकॉज अभी हमें एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। जब ये चैप्टर खत्म आने वाला होगा तब हम स्पीड पे भी ध्यान देंगे। अभी एक्यूरेसी पे ध्यान दो कि आपके आंसर गलत ना आए, ध्यान से करो समझ के।
अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं टाइम टेकन फॉर पहला s/2 डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस है s/2 और इसमें स्पीड है v1। So time taken is s/2 v1. Time taken from C to B is t. इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं s1। s1 प्लस s2 मिला के कितना है? सर s/2 s/2। ठीक है, स्टेप s1 प्लस s2 इज s/2। यस s1 डिस्टेंस की बात करें, टाइम है t/2, स्पीड है v2, तो s1 कितना हो जाएगा? s1 यही होगा v1 v2 इंटू t/2। ठीक है, स्टेप s1 इज v2 इंटू t/2, s2 इज v3 v2 into t/2 v3 इंटू t/2। तो t कितना आ गया? s अपॉन v2 प्लस v3। A से B C तक आने में टाइम लग रहा है t1 s/2 v1। C से भी टाइम लग रहा है t। तो टोटल टाइम कितना हो गया? एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही बनेगा। यस सर बिकॉज टोटल डिस्टेंस इज s/2 v1। This comes out to be यही बना। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर हाँ जी। सर जैसे उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस उसने टाइम t1 से ट्रेवल की और बाद में जो अगला हाफ है उसको भी दो हाफ्स में डिवाइड करके टाइम t पहले डिस्टेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, फिर टाइम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। सर तो जो पहला डिस्टेंस है वो s/2 होगा और सर जो बाकी दो रिमेनिंग पार्ट्स थे वो भी हाफ हाफ तो s/2 ही होगा। सर वो तो हाफ फिर हाफ थोड़ी होगा। जब टाइम हाफ किया है तो स्पीड अलग अलग है, डिस्टेंस हाफ हाफ थोड़ी हो जाएगा। s2 और s3 इक्वल थोड़ी होंगे, सॉरी s1 और s2 ये इक्वल सर मैं थोड़ी है। कह रहा हूँ ओके सर मैं यही बोल रहा हूँ यार, ध्यान से करो। मतलब मैं नया कुछ नहीं कराऊंगा, पर कंफ्यूज हो जाओगे तो गलत है। जल्दबाजी कोई नहीं, हम यहाँ पे रेस नहीं लगा रहे। मेरे को ठीक आंसर चाहिए, चाहे टाइम लगा के निकालो। बिकॉज अभी तो तीसरा न्यूमेरिकल किया है फिजिक्स का, वो भी पहले दो तो बिल्कुल बेसिक थे। तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है कोई भी। Sir, can you explain this again? हमें दिया था पहले आधा डिस्टेंस, मतलब टोटल अगर s है, हमें दिया था फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मतलब s/2। s/2 इज कवर्ड विद स्पीड v1। तो इसका हम टाइम निकाल लेंगे। डिस्टेंस s/2 है, स्पीड v1 है, तो टाइम लगा s/2 ओवर v1।
फिर दिया कि अगर C से B तक टाइम t लग रहा है, आधे टाइम के लिए स्पीड v2, आधे टाइम के लिए v3, तो t/2 टाइम के लिए स्पीड v2, t/2 के लिए v3, और टोटल s1 प्लस s2 मिला के कितने हो जाएंगे? ये डिस्टेंस कितना होगा? s/2। तो s1 और s2 की वैल्यू डाल दी। s1 इज v2 इंटू t/2, s2 इज v3 इंटू t/2। वहां से हमारे पास t आ गया। तो टोटल टाइम कितना लगा? a से c तक लगा था t1, c से b तक t, तो टोटल टाइम इज t1 प्लस t। देखो क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट राइट। वेलोसिटी, वेलोसिटी, बिकॉज फिर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों निकाला करेंगे। वेलोसिटी, it is the rate at which it is the rate of change of displacement of the body with respect to time. It is the rate of change of displacement of the body. It is the rate of change of displacement of the body with respect to time. It is the rate of change of displacement of the body with respect to time. It is a vector quantity. It is a vector quantity. And its direction is same as that of, and its direction is same as that of, कौन सी डायरेक्शन होती है? वेलोसिटी की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट वाली। Displacement. same as that of displacement of the body, and its direction is same as that of displacement of the body. Velocity can be positive or negative for a moving body. Velocity can be positive or negative for a moving body. And this may be same. Negative signifies only the direction of motion. Negative velocity only signifies the direction of velocity. Negative sign only signifies the direction of velocity. First to write average velocity. Average velocity. It is the ratio of total displacement of the body it is the ratio of total displacement of the body to the total time in which the displacement is produced. To the total time in which that displacement is produced.
For example, if x coordinate of the body changes from x1 to x2 in time t2 minus t1, चेंजेस के बाद क्या सर? x1 to x2 in time t2 minus t1, then average velocity is, सिर्फ वेक्टर का साइन डाल दिया, ये ऊपर जो एरो डालते हैं तो सिग्निफाइज ये वेलोसिटी की बात हो रही है, अगर एरो नहीं डालेंगे तो स्पीड है. सिमिलरली डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट है तो इनके ऊपर एरो डाल दिया x1 x2 के ऊपर. सो दिस सिग्निफाइज कि डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है. Instantaneous velocity. Velocity at any particular instant or at any particular point in the path. Velocity at any particular instant or at any particular point in the path. That is, if time interval delta t tends to 0, then instantaneous velocity is, Particular instant. जैसे पहले लिखा था, time interval delta t tends to 0. Time interval delta t tends to 0, इसको ऐसे लिखते हैं, delta t tends to 0. Then instantaneous velocity is dx by dt. सिर्फ वेक्टर साइन डाला, अदरवाइज फॉर्मूला वही है जो स्पीड का था. So can you please repeat the definition? The velocity of the body at any particular instant, or at any particular point. Velocity of the body at any particular instant or at any particular point. That is, if delta t tends to 0, instantaneous velocities. If delta t tends to 0, instantaneous velocities. V is equal to dx by dt. V is equals to dx by dt. यूनिफॉर्म है तो फिर वही डेफिनेशन लिख देंगे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम however small the interval may be. यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन सर Zero. 0, बिकॉज यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड भी नहीं बदल रहा, उसकी डायरेक्शन भी नहीं बदल रही, तो देन वी कैन से दैट इट्स एक्सेलरेशन विल बी 0. So next is uniform velocity. Uniform velocity. If body covers equal displacements in equal intervals of time, equal displacement in equal intervals of time, however small those time intervals may be, however small those time intervals may be, then velocity is said to be uniform. Then velocity is said to be uniform. For a body moving with, uniform velocity, average and instantaneous velocities. For body moving with uniform velocity, average and instantaneous velocities are always equal
and acceleration of the body will be 0. And acceleration of the body will be 0. And acceleration of the body will be 0. You can write a numerical. A table clock has its minute hand. A table clock has its minute hand 5 centimeter long. Find the average velocity of the tip of minute hand between 6 a.m. and 6:15 a.m. Between 6 a.m. and 6:15 a.m. Also find the average speed in this time interval. हमने बताना है टिप ऑफ मिनट हैंड की एवरेज वेलोसिटी 6 से 6:15 बजे तक. So 6 to 6:15 and average speed also. हमें दिया मिनट हैंड इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग. करो सॉल्व इसको. यार ये क्वेश्चन आप मेरे से कराओगे. देखो मतलब कुछ लॉजिक होना चाहिए. 6 बजे मिनट हैंड जो है वो यहाँ पे है. सर √2/180 सेंटीमीटर. 6:15 इधर आ गया. मतलब टिप ऑफ मिनट हैंड जो P1 पे था P2 पे आ गया. तो ये सर, डिस्प्लेसमेंट होगी √2r. यस तो मैंने पूछा था √2 एवरेज वेलोसिटी 2r अपॉन टाइम. टाइम कितना लगा? 15 मिनट. सर 900 सेकंड्स. तो ये मीटर पर सेकेंड में आंसर है. आपको पहले भी बताया था आंसर मस्ट ऑलवेज बी इन एसआई. आप इसको छोड़ दोगे तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे. यूनिट छोड़ दोगे तो कटेंगे. समझ में आया? देखो 6 बजे पे मिनट हैंड यहाँ पे था, 6:15 इधर आ गया. तो इस यही डिस्प्लेसमेंट हुई ना बस. और अगर इसी में एवरेज स्पीड पूछी होती तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इसका कितना था? 1/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस. 1/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस मींस सर 55 31.4. पाई आर बाय 2 और टाइम सेम 900 सेकेंड्स. तो ये एवरेज स्पीड थी. सर इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. या वो छोड़ दो 9th वाली आदत. इसके मार्क्स नहीं होते कुछ भी फिजिक्स में. अब लास्ट स्टेप पे जितनी मर्जी बड़ी कैलकुलेशन छोड़ के आओ, बोर्ड मार्क्स नहीं काटेगा. स्कूल वालों ने तो वैसे ही काटने, वो तो कहीं भी काट लेंगे, उसकी चिंता ना करो. बट बोर्ड में ऐसे कभी मार्क्स नहीं कटते. इसके कोई मार्क्स होते ही नहीं इस कैलकुलेशन के. होनी ठीक चाहिए. आपने सॉल्व नहीं किया तो कोई बात नहीं, ये नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे. समझ में आया? देखो किसी को डाउट है तो. नो सर.
नेक्स्ट इज, इसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा। रिलेटिव वेलोसिटी पता है क्या होता है आपको? रिलेटिव वेलोसिटी, हम रिलेटिव वेलोसिटी किसको बोलते हैं? अगर आप सड़क पे जा रहे हो एंड यू आर ट्रैवलिंग विद 5 मीटर पर सेकेंड, तो वो आपकी 5 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? रेफरेंस फ्रेम क्या है? अर्थ। तो जिसको हम लिख देते हैं बॉडी इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इट्स स्पीड ऑफ द बॉडी रिलेटिव टू अर्थ, assuming अर्थ टू बी एट रेस्ट। रिलेटिव वेलोसिटी 1D में, अभी हम 2D पे नहीं जा रहे, 2D में वेक्टर्स यूज होंगे। 1 डायमेंशनल मोशन में बहुत सिंपल कंसेप्ट होता है कि अगर दो बॉडीज एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी इज द डिफरेंस ऑफ टू। मतलब अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही हैं तो रिलेटिव कितनी हो गई? 0। दे आर एट रेस्ट रिलेटिव टू ईच अदर। आप कार में जा रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड से, साथ में एक और भी कार जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो यू आर एट रेस्ट रिलेटिव टू ईच अदर। यहाँ पे एरोप्लेन में जा रहे हो, एरोप्लेन से 800 किलोमीटर पर आवर से फ्लाई कर रहा है, तो सारे पैसेंजर उसी वेलोसिटी से फ्लाई कर रहे हैं, देयरफॉर देयर एवरेज वेलोसिटी रिलेटिव टू ईच अदर इज 0। एक दूसरे के रिलेटिव तो वो रेस्ट पे ही हैं सारे। अर्थ से कोई देखेगा तो उनकी वेलोसिटी है। सो अगर दो बॉडीज एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं 1D में, तो हम रिलेटिव वेलोसिटी ले लेते हैं डिफरेंस ऑफ टू। ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो सम ऑफ टू। मतलब अगर एक 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रही है, दूसरी उसके ऑपोजिट आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी 15। एंड द सेम कंसेप्ट्स होल्ड फॉर एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आल्सो। ऑल्दो उसको हम कहीं फिजिक्स में लिखते नहीं है, बट रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी अगर आपने निकालनी है तो अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस ऑफ टू। ऑपोजिट में आ रही हैं तो सम ऑफ टू। सिमिलरली दो बॉडीज के एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन इज डिफरेंस, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी इज द सम। जैसे मैंने से मेरे हाथ में एक पेंसिल है कि पेन है, इन दोनों को ड्रॉप कर दिया तो इनकी रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 0। अब एक ऊपर से ड्रॉप किया, एक को नीचे से ऊपर फेंका, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगी? एक को ड्रॉप किया, एक को नीचे से ऊपर। ऐड हुई। ध्यान से सुना करो, अभी भी 0 ही होगी। मैंने क्या बोला? दो बॉडीज की एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन इज डिफरेंस ऑफ टू। एक्सेलरेशन दोनों की सेम डायरेक्शन में नहीं है, इसको नीचे से ऊपर फेंका, पर इसकी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? कौन सी एक्सेलरेशन है? ग्रेविटी डाउनवर्ड्स। इसकी भी ग्रेविटी डाउनवर्ड्स। तो बॉडी ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, आपने वेलोसिटीज को नहीं देखना जब रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालनी है, आपने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखनी है। तो मैं पेन को ऊपर से नीचे फेंकूं या नीचे से ऊपर फेंकूं, दोनों की एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो रिलेटिव तो 0 ही रहेगी। इफ टू बॉडीज आर अंडर फ्री फॉल, फ्री फॉल मतलब एक वेलोसिटी देके छोड़ दिया हमने, वो ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव कर रही है। अब वो ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, हॉरिजॉन्टल जा रही है, किसी एंगल पे जा रही है, हर केस में रिलेटिव एक्सेलरेशन विल बी 0, बिकॉज हर बॉडी की एक्सेलरेशन सेम ही है, जी और डाउनवर्ड्स। सो सेम कंसेप्ट हर जगह होल्ड करेगा। जब आपको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो यू विल नॉट बी बॉदर्ड अबाउट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की देखनी है। जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो सिर्फ वेलोसिटीज की डायरेक्शन देखनी है। सो इसको कल कर दे, इस टॉपिक को, रिलेटिव को, एंड आज एक छोटी सी शीट ऐड करूंगा, उसको करके देखना। और जो कल वाली शीट थी उसमें अगर कोई डाउट है तो मेरे से कल पूछ लेना। ओके सर। सर उसका ना जो कल शीट आपने दी थी सर, उसका पहला क्वेश्चन वेक्टर्स से हो रहा था, वो अभी रहने दो, बिकॉज मैंने अभी नॉर्मली 9th लेवल की दी थी। अगर किसी में वेक्टर्स लग रहा है तो छोड़ दो, अभी वेक्टर्स अभी नहीं कराया मैंने। तो ये शीट आपको व्हाट्सएप पे सेंड करनी है? नहीं सेंड नहीं करनी है, मैंने सिर्फ देखना था कि आपसे कितने निकल पाते हैं, नहीं निकल पाते। तो मेरे को जितने लोगों के मैसेज आए हैं सबने यही लिखा है कि 1 नहीं निकला या 2 नहीं निकले, तो मेरे को सिर्फ वो जज करना था थोड़ा सा।